Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you are in the best of your health. This is your second English text class. In the previous lecture, we started a lesson named Friendship and Cooperation. We have read the first page of Friends in Trouble. It was explained in the previous lecture. Now I am going to start the remaining text with its explanation. Are you ready for reading? Are you ready? Friends in trouble. They kept walking through the forest, trying to find their way back home, but all their efforts were in vain. All of a sudden, they saw a huge black bear coming towards them. They got frightened. This is where Rahil showed his selfish nature and said, "Look, Basit, we are in great trouble. As I see it, we have only two choices. Either we climb on a tree and save ourselves, or we start running. Since I am good at climbing, I am going to climb a tree. As you don't know how to climb, it would be a good idea for you to run as quickly as you can to save your life." Basit was extremely shocked to hear this. He had never expected that his friend would abandon him like this, because he loved and trusted his friend sincerely. As the bear came nearer, Basit was paralyzed with fear. Finding no other way, he quickly lay flat on the ground, stopped breathing, and pretended to be dead. When the bear reached him, it smelled his body, probably thought he was dead, and did not touch him. Soon the bear just walked away. After a while, Basit heard his friend coming down the tree and guessed that the bear had gone away. He stood up and looked at Rahil angrily. But Rahil, instead of feeling ashamed or apologizing to his friend for having abandoned him, just asked excitedly, "Basit, what did the bear whisper in your ear?" From his position high up in the tree, he had seen that the bear had brought its face close to Basit's head and thought that the bear had said something to his friend. Basit looked at his friend angrily and replied, "He advised me not to trust a friend who leaves his friend at the time of danger." Hearing this, Rahil felt embarrassed. He did not know what to say and started to walk away. Basit followed him silently, since Rahil had seen the way out from the top of the tree. Both friends quickly got out of the forest and reached their homes. Okay girls, we have read the whole content of this chapter. I am recapitulating what we have read before. This is the story about two friends, Basit and Rahil, who lived in a village near Hyderabad. They were also classmates and they liked to walk, they liked to play together. और इनके घर के करीब ही जो है, इनके विलेज के करीब ही जो है देयर वाज अ फॉरेस्ट, और वहाँ जो है दे ऑलवेज समटाइम्स दे वेंट देयर टू एंजॉय द नेचुरल ब्यूटी बिकॉज दे वर द नेचुरल लवर्स. ओके, बासत जो था बाय नेचर ही वॉज वेरी काइंड एंड हेल्पफुल पर्सन था. ही वॉज सो सिंसियर पर्सन. उसके पेरेंट्स ने उसको हमेशा दूसरों की मदद करना सिखाया था. एंड he had a special place for Rahil in his heart, or he was always ready to help Rahil in his homework or in any difficulty or problem. हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता था. एंड बासित जो है वो ही वॉज नॉट गुड एट क्लाइंबिंग. उसको जो है वो दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था. लेकिन जो राहिल था ही न्यू दैट हाउ टू क्लाइंब अ ट्री, कि कैसे दरख्त पर चढ़ते हैं. एज ही हैड अ टॉल ट्री इन हिज हाउस, उसके घर में क्योंकि एक बड़ा सा लंबा सा दरख्त था. वन डे व्हाट हैपेंड, नाउ द स्टोरी, द क्लाइंबिंग स्टार्टेड.
कि क्या हुआ एक दिन कि वाहिल और बासित ने डिसाइड किया कि वो एक नियर बाय जो उनकी फॉरेस्ट था उसमें जाएंगे ताकि वो नेचुरल ब्यूटी को, जो बिकॉज दे वर नेचर लवर्स, तो वो उसको इन्जॉय कर सकें. सो दे वर इन्जॉइंग ईच अदर्स कंपनी एंड द थिंग्स अराउंड दैम. तो उनको यही नहीं पता चला कि दे लॉस्ट देयर वे इन द वुड्स. सो दे वर वेरी, जाहिर सी बात है, आप जो है वो बहुत, जब आप ऐसी डेंजर जगह पे हो, क्योंकि उनके विलेजर्स उनको बताते थे कि वहाँ पर वाइल्ड बीस्ट वगैरह होते हैं, वहाँ पर जंगली जानवर होते हैं. तो वो लोग क्या कहते हैं, वो थोड़े से डर गए, उन्हें समझ में नहीं आया कि उन्हें क्या करना चाहिए. नाउ लेट्स सी व्हाट दे हैव डन. दे केप्ट वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट. वो चलते चले गए फॉरेस्ट में एंड ट्राइंग, लेकिन वो ऐसे नहीं चल रहे थे, विदाउट नोइंग नहीं चल रहे थे, बल्कि दे वर ट्राइंग टू फाइंड देयर वे बैक होम. वो असल में अपने घर की तरफ दोबारा जाना चाहते थे, तो दे वर फाइंडिंग देयर वे. बट ऑल देयर एफर्ट्स वर इन वेन. वेन इज़ अ न्यू वर्ड फॉर यू. आई एम हाईलाइटिंग दिस वर्ड. वेन मीन्स है, मतलब होता है कि विदाउट एनी सक्सेस, यानी हर चीज़ बेकार हो गई, यानी उनके लिए, हाँ, उनकी सारी कोशिशें उनके लिए जो है वो क्या हो गई, बेकार दी. ऑल ऑफ अ सडन. ऑल ऑफ अ सडन क्या मतलब मीन्स होता है सडनली, अचानक से, एट वंस, प्रॉम्प्टली. दे सॉ, व्हाट दे सॉ, दे सॉ अ ह्यूज ब्लैक बेयर. एक बड़ा, ह्यूज मीन्स बड़ा, ब्लैक मीन्स काला, बेयर देखा. एंड वेयर, फ्रॉम वेयर इट वॉज कमिंग टुवर्ड्स दैम, यानी बासित और राहिल के पास आ रहा था. दे गॉट फ्राइटेंड. फ्राइटेंड इज अ फेमिलियर वर्ड, आई थिंक सो. मीन्स खौफजदा हो गए, स्केयर्ड हो गए. दिस इज़ वेयर राहिल शो हिट्स सेल्फिश नेचर. अच्छा, जो राहिल था उसने अपनी यहाँ पर अपनी जो सेल्फिश नेचर है, जो खुदगर्ज नेचर है, उसको शो किया. कैसे, हाउ. लुक बासित, वी आर इन ग्रेट ट्रबल. देखो बासित, हम बहुत मुश्किल में, वी आर इन ट्रबल. ट्रबल मीन्स प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, वट एवर यू वॉन्ट टू से. एज आई सी इट वी हैव ओनली टू चॉइसेस. हमारे पास सिर्फ दो चॉइसेस हैं, हमारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं. वी हैव टू वेज, कि हम या तो दरख्त पे चढ़ जाएं टू सेव आवर सेल्फ, या हम भागना शुरू कर दें. अब so as you know that Basit was not good at climbing but Rahil was. तो कि वो कहता है कि आई वॉज गुड एट क्लाइंबिंग, आई एम गोइंग टू क्लाइम अ ट्री. मैं दरख्त पे चढ़ जाता हूँ. एज यू डोंट नो हाउ टू क्लाइम, और क्योंकि आपको तो आते ही नहीं है चढ़ना, तो इट इज़ अ ग्रेट आइडिया फॉर यू. आपके लिए यही बेहतर होगा, इट इज़ बेटर फॉर यू टू रन एज क्विकली एज यू कैन टू सेव योर लाइफ. कि आप इतनी तेज़ भागें ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बचा सकें. कैसे बचा सकें, जाहिर सी बात है, बेयर जो है वो एक वाइल्ड बीस्ट है, वो आपको खा जाएगा. तो हाउ कैन यू सेव योर सेल्फ, आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, या तो आप भाग के बचा सकते हैं. सो स्टूडेंट, दिस वॉज द टाइम कि जिस वक्त जो है राहिल की जो सेल्फिश नेचर थी वो बासित के सामने एक्सपोज हो गई. कि उसने इंस्टेड ऑफ सेविंग हर हिज फ्रेंड, उसने अपने आप को बचाने के लिए तो दरख्त पे चढ़ना पसंद किया, और दूसरा उसने अपने फ्रेंड को ये मशवरा दिया कि वो जो है वो भागना शुरू कर दे. एंड यू नो, अगर वो भागेगा तो ही कैन नॉट रन एज फास्ट एज बेयर. वो इतना तेज़ नहीं भाग सकता था जितना बेयर भागता. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड. बासित वॉज एक्सट्रीमली शॉक्ड. बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुआ, ऑब्वियसली, बिकॉज ही हैड अ स्पेशल प्लेस इन हिज हार्ट फॉर राहिल. तो उसको ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. इट इज़ beyond his expectation. He had never expected that his friend would abandon him like this. उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसका फ्रेंड जो है उसको छोड़ देगा. abandon means होता है to leave, छोड़ देना. इस तरह उसे मुश्किल वक्त में, in the time of danger, in the time of difficulty, वो उसको छोड़ देगा. because वो उसको ट्रस्ट करता था, उससे अपने फ्रेंड से बहुत मोहब्बत करता था, उसके साथ बहुत सिंसियर था. as the bear came nearer, Basit was paralyzed with fear. Obviously there was a wild beast in front of him. तो आपकी भी क्या कंडीशन होगी अगर आप किसी शेर को, किसी रीछ को सामने देखेंगे. तो he was paralyzed भी यानी बिल्कुल मफलूज हो गया. किसकी वजह से, खौफ की वजह से. पैरालाइज यानी इंसान नॉट एबल टू मूव a single step, not able to move or not able to take a single step. एक कदम भी नहीं ले सकता था because of fear, यानी खौफ की वजह से. finding no other way, उसको कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आया. at once he quickly lay flat on the ground. उसने क्या किया कि वो एकदम से जो है वो ज़मीन पे, यानी जो ग्राउंड था, घास थी, उस पर लेट गया. stop breathing, सांस को रोक लिया. एंड प्रिटेंडेड का मतलब ऐसा जाहिर किया जैसे कि वो मर गया है.
और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो वाइल्ड बीस्ट होते हैं ना, ये हमेशा जो है ये जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं लाइक लायन, बेयर, कुछ वाइल्ड एनिमल्स, ये जो अपना प्रे होता है उसको खुद कैच करते हैं, देन दे ईट। और वो जो मुर्दार चीज़ें होती हैं, जो मरी हुई चीज़ें होती हैं, उनको नहीं खाते। सो क्या हुआ, व्हेन द बेयर रीच्ड हिम, जब वो बेयर उसके पास पहुंचा, बिकॉज ही वॉज प्रिटेंडेड टू बी डेड, वो अपने आप को मुर्दा जाहिर कर रहा था। इट स्मेल्ट हिज बॉडी, स्मेल्ट मीन्स उसकी बॉडी के करीब आके उसको सूंघा, उसको महसूस किया कि वो क्या है, डेड है या लाइव है। प्रोबेबली मीन्स शायद, थॉट ही वॉज डेड, उसको ऐसा लगा कि ये जो बासित है वो मर चुका है। एंड डिड नॉट टच हिम, उसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया, यानी उसको टच ही नहीं किया। एंड सून द बेयर जस्ट वॉक्ड अवे, और आगे की तरफ बढ़ गया। आफ्टर अ वाइल, यानी थोड़ी देर के बाद, बासित हर्ड हिज फ्रेंड कमिंग डाउन द ट्री, उसका फ्रेंड यानी राहिल, एज यू नो दैट वो सेल्फिश था, क्लाइंब कर गया था ट्री पे, तो नीचे आया एंड गेस दैट, और उसने अंदाज़ा लगाया द बेयर हैड गॉन अवे, कि बेयर जो है वो जा चुका है। स्टूड अप एंड लुक्ड एट राहिल एंग्रीली, अब जो है वो कहते हैं बासित खड़ा हुआ और अपने दोस्त को जो है, जाहिर सी बात है इट वॉज अ मूवमेंट ऑफ एंगर, उसके लिए गुस्से की बात थी कि उसके जो दोस्त था राहिल, जिसके लिए उसकी वो स्पेशल प्लेस रखता था अपने हार्ट में, वो उसको छोड़ के चला गया एट द टाइम ऑफ डेंजर। बट राहिल इंस्टेड ऑफ फीलिंग अशेम्ड, उसने शर्मिंदा नहीं हुआ, दिस वॉज अ बैड थिंग ऑल्सो, और अपोलोजाइजिंग, और ना ही उसने माफ़ी मांगी अपने फ्रेंड से फॉर हैविंग अबेंडन हिम, कि उसने उसको अकेला छोड़ दिया इन द टाइम ऑफ डेंजर। एंड जस्ट आस्क्ड एक्साइटेडली, बढ़ के बहुत ही एक्साइटेडली, बहुत ही खुशी से उससे पूछने लगा कि बासित, व्हाट डिड द बेयर विस्पर इन योर ईयर, कि तुम्हारे कान में, विस्पर मीन्स टू से समथिंग स्लोली इन समवन्स ईयर, बहुत ही कि तुम्हारे कान में क्या कहा था बेयर ने, फ्रॉम हिज पोजीशन हाइंग अप इन द ट्री, क्योंकि वो ट्री पे चढ़ा होता तो ये सब चीज़ों को नोटिस कर रहा था, पूरे सीन को उसने कैप्चर किया। ही हैड सीन दैट बेयर हैड ब्रॉट इट्स फेस क्लोज टू बासित हेड, तो क्योंकि वो देख चुका था कि बेयर ने अपना फेस जो है वो बासित के सर के करीब लाया। एंड थॉट दैट द बेयर हैड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, और उसे ऐसा लग रहा था कि बेयर ने उसके कान में कुछ कहा है, यानी बासित के कान में कुछ कहा है। बासित लुक एट हिज फ्रेंड एंग्रीली इन रिप्लाई, बासित ने अपने फ्रेंड को बहुत गुस्से से देखा और उसने क्या जवाब दिया, ही एडवाइज्ड मी नॉट टू ट्रस्ट अ फ्रेंड, कि कभी भी, उसने मुझे ये एडवाइस किया कि कभी भी अपने दोस्त पे भरोसा ना कीजिए, हु लीव्स हिज फ्रेंड एट द टाइम ऑफ डेंजर। कौन से दोस्त पे, हर दोस्त की बात नहीं की उसने, कौन से दोस्त की बात की कि जो आपको टाइम ऑफ डेंजर, टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी में छोड़ दे, मुसीबत के वक्त में छोड़ दे, तो उस पर तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हियरिंग दिस, अब जब उसने ये बात सुनी राहिल ने, राहिल फेल्ट एम्बेरस्ड का मतलब थोड़ा शर्मिंदा हुआ, थोड़ा गिल्ट फील की, थोड़ा उसको इस बात का एहसास हुआ। ही डिड नॉट नो व्हाट टू से, उसको नहीं मालूम था कि उसे क्या कहना चाहिए, और जाहिर सी बात है वो कुछ ही हैज़ नो वर्ड्स टू से, ही हैड नो वर्ड्स टू से, उसके पास कोई अल्फाज ही नहीं थे, इसलिए वो आगे की तरफ चलने लगा। बासित फॉलोड हिम साइलेंटली, बासित भी उसके फुट स्टेप पे चलने लगा। क्यों? बिकॉज ही वॉज फॉलोइंग हिम, क्योंकि राहिल ने जो है वो दरख्त पे चढ़ के जो है, क्योंकि वो इट वॉज अ टॉल ट्री, तो उसने रास्ता देख लिया था कि कहाँ, किस रास्ते के ज़रिए से हम बाहर निकल सकते हैं। बोथ फ्रेंड्स क्विकली गॉट आउट ऑफ द फॉरेस्ट, एज यू नो, व्हेन यू नो द वे यू कैन इजीली गेट आउट फ्रॉम दैट प्लेस। तो वो बाहर निकल आए जंगल से, एंड रीच देयर होम्स सेफ एंड साउंड, और अपने घर पहुँच गए बिल्कुल खैरो आफियत। Now students, take a quick review of the story, like Friends in Trouble. How many characters are there? Basit and Rahil. Where the incident took place, in the woods, in the forest, in the jungle, whatever you want to say. Problem क्या हुई थी इनके साथ? What was the climax? Lost their way. What problem they encountered? That in the forest they lost their way in the deep forest, उन्होंने रास्ता भूल गए थे, while they were enjoying the natural beauty and encounter with a wild beast, और उनका किससे सामना हुआ? एक bear से, जो कि एक wild beast था। And what they have done, fortunately saved from the bear, खुशकिस्मती से luckily they saved from the bear and found the way out। and लेकिन उसमें जो पूरी स्टोरी में जो है what we have learned, कि जो है जो
दोस्त रहता है वो कभी भी आपको मुसीबत में नहीं छोड़ता। ये जो ट्रू और सिंसियर फ्रेंड होता है, अगर आपका ट्रू और सिंसियर फ्रेंड नहीं है वो आपको हमेशा अपने टाइम ऑफ डेंजर में आपको हमेशा वो छोड़ देगा। नाउ कम टू द होमवर्क। What you will do? Read Unit 1. Find out the meanings of new words. There are so many new words that are new for you. तो आप उसके meanings find out करें. As you know how to look up the meaning in the dictionary. This is your task for today. Okay student, this is all for today. और being a responsible student, I hope कि आप अपना homework को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, reading करिएगा, मीनिंग्स को ज़रूर लुकअप कीजिएगा डिक्शनरी में, एज यू नो हाउ टू लुकअप द मीनिंग इन द डिक्शनरी। टिल देन इंशाल्लाह ताला वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।